Hello students, welcome back to Maluka Academy. We were continuing with the chapter Is Matter Around Us Pure? And Is Matter Around Us Pure में हमने पहले pure substances की definition क्यों किया? Then we dealt about the definition of the mixtures. Then we dealt about the types of the mixtures. हर type of the mixture को हमने detail में पढ़ा. Then हमने separation techniques को शुरू कर लिया था. सेपरेशन टेक्निक्स को शुरू करने के बाद वी हैड स्टार्टेड विद द सेपरेशन ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर्स एंड नाउ वी आर डीलिंग विद द सेपरेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर्स. In the separation of homogeneous mixtures, we had already completed the topic, that is evaporation. Separation of homogeneous mixtures. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है एंड वी हैव टू डील विद द टू टेक्निक्स दैट आर आल्सो रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द होमोजीनस मिक्सचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको होमोजीनस मिक्सचर्स के बारे में नहीं पता तो मुझे बता देने दो. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स जिसमें यूनिफॉर्म होती है, मिक्सिंग होती है हर पार्ट में. इफ़ वी टॉक अबाउट द राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, सेंटर, हर तरीके में मिक्सचर इज होमोजीनस, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ द मिक्सचर. तो इस टाइप के मिक्सचर को हम फिजिकल मैथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. उसमें से एक तरीका हमने किया था इवापोरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेकेंड मैथड एंड दैट इज, wait, let me write it up, that is crystallization. So we are going to start with crystallization today. Students, in the crystallization technique, first of all आपको crystallization की definition से ही पता चल रहा है, word से ही पता चल रहा है. crystallization means crystal formation. हाँ जी, crystallization means crystal formation. In this process we get the pure crystals of a sample that is impure. ठीक है, तो इसका हम apparatus देख लेते हैं, बट उससे पहले we have to write one thing and that is crystallization is a better technique. Crystallization is a better technique than evaporation. Than evaporation. Why? But why? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इवेपोरेशन में हम क्या बनाते हैं, वी इवेपोरेट द मिक्सचर. ठीक है, मेरे पास एक सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, इवेपोरेट कर रही हूँ. द वोलाटाइल सब्सटेंस इवेपोरेट्स अप, वेपराइज हो जाता है वो, और जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है वो कहाँ पे रह जाता है, वो नीचे रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, but some, as we know that in evaporation technique we have to direct heat a mixture. We have to direct heat a mixture. Due to direct heating, many substances can decompose. Many substances can decompose, so the
result is not that accurate. Result is not that accurate. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये लिखना है कि इफ वी इनडायरेक्ट हीट अ सब्सटेंस not a substance, basically we have to write up the mixture. Where is the duster? A mixture. We have to, if we indirect heat a mixture, the result is not that efficient. Thus, crystallization technique is a better technique. Now, crystallization के हम यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं. First of all, let us see what is the apparatus of crystallization. This is a china dish and this is a sand bath that I am taking. Here, this is a sand bath and हमने यहाँ पे पूरी sand रखी हुई है. यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा Bunsen burner है. You can see these are the flames of the Bunsen burner. And this is our mixture. ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली किया क्या क्या है. Let us see. This is our china dish. This is mixture. This is the sand bath. Students, जैसे हमने पढ़ा था water bath, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या है? सैंड बाथ प्रेजेंट है, ताकि डायरेक्ट हीटिंग ना हो, किसी भी सब्सटेंस को डायरेक्ट हीट ना पहुँचे और उसका नुकसान ना हो जाए. इसलिए सैंड बाथ इज ऑल्सो एफिशिएंट एज इन द केस ऑफ वाटर बाथ, बट इवेपोरेशन से ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन. ओके, दिस इज अवर Bunsen burner. Now, what is the crystallization technique? Crystallization technique is a technique. In this technique, we form a mixture of the impure substance and that is a saturated solution. By continuous heating. ओके, मुझे समझाने दो कि ये टेक्निक है क्या बेसिकली. फर्स्ट, द सब्सटेंस इज हीटेड इन द चाइना डिश यूजिंग द सैंड बाथ. देन इट इज, उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया जाता है एंड देन इट इज ट्रांसफर टू द कूल water, and in this way we obtain the pure crystals by continuous heating and stirring. After the formation of saturated solution, the mixture is transferred
is transferred to cool water, the pure crystals are formed. The pure crystals are formed. Students देखो यहाँ पे हमने किया क्या है. This is a technique, crystallization, इसके बारे में यहाँ पे technique used to separate It is a technique. First of all, crystallization का क्या मतलब है? We have to form crystals. It is a technique used to separate the crystalline solid, and this is the important word, crystalline solid. यहाँ पे अब आप वर्ड्स पे ध्यान दो, मैं आपको ट्रांसलेशन करके अच्छे से समझाती हूँ that what is the meaning of this thing. देखो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को ही क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हैं. व्हाट इज क्रिस्टल फॉर्मेशन? क्रिस्टल फॉर्मेशन आपने देखा होगा, जैसे कि शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, एंड पोटाश एलम जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, उसके भी क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं. इस तरीके से हम कॉपर सल्फेट के भी क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं. वी कैन फॉर्म द क्रिस्टल्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक नोन एज crystallization. But crystallization technique can only be used to separate a mixture containing a crystalline solid. Crystalline solid होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर crystalline solid नहीं होगा तो there will be no crystal formation, the technique will fail, and there will be no separation of the substances. We form a mixture of the impure substance by continuous heating and stirring. ये मेरे पास चाइना डिश है, सपोज करो मेरे पास क्या है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं इम्प्योर. तो मैं क्या करूँगी? आई विल टेक अ बीकर एंड उसमें क्या करूँगी? इम्प्योर जो मेरे पास क्रिस्टल्स हैं उसको 10 मिलीलीटर वाटर में डालूंगी. मतलब मैंने क्या करना है? विद कॉन्टिन्यूस हीटिंग. हीटिंग में ध्यान रखना है कि वी डू नॉट लेट द सॉल्यूशन टू कम टू अ बॉयल. अगर बॉइलिंग हो गई तो क्या हो जाएंगे? इवेपोरेशन होनी शुरू हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं हो पाएगा. मैंने बीकर लेना है, बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा सॉल्यूट लेना है, उसको मिक्स करना है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक मिक्स करना है. जब हीटिंग की हेल्प से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, साथ के साथ ही उठा के उसको विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंड, हाथ से नहीं उठाना है क्योंकि चाइना डिश क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्म ड्यू टू कॉन्टिन्यूस हीटिंग. उठा के उसको मैंने कूल वाटर में ट्रांसफर कर देना है. दिस इज द बर्निंग. हियर लेट मी ट्रांसफर द चाइना डिश इनटू द कूल वाटर. यहाँ पे क्या था? सैंड बार था. अब मैंने इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? आई कैन से कूल वाटर कंसिस्टिंग ऑफ द आइस क्यूब्स. Let me write it up here. Cool water. ठीक है? This is the mixture. And mixture के अंदर अब हम observe करेंगे सारे impure substances हैं वो पानी में रह जाएंगे, and ये जो मेरा substance है crystalline substance वो क्या form करना शुरू कर देगा? Specific shape के crystal formation शुरू कर देगा. As you can see here, these are the crystals that are formed. This is the impurities in the water. So if I have to write about crystallization, I can write that crystallization is a technique of continuous heating of the impure mixture using sand bath. Using sand bath until a
saturated solution is formed. Whenever there is formation of the saturated solution, the saturated solution is immediately, you have to remember this word, immediately transferred to cool water, transferred to cool water to undergo crystal formation. स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए. जब पानी ठंडा हो जाएगा, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे आफ्टर 6 to 8 hours. After 6 to 8 hours, and we can collect the pure crystals of the impure substance that we have to separate. तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, क्रिस्टलाइजेशन के तरीके से एक सब्सटेंस को हमने सेपरेट आउट कर लिया है. ये स्टूडेंट्स, सो now we had completed with the crystallization. Let me write you up a question. The question is, how will you separate? How will you separate the impure mixture of potassium nitrate? पोटेशियम नाइट्रेट. तो आपने क्या लिखना है इसमें, यू विल राइट दैट वी विल टेक द पोटेशियम, impure potassium nitrate sample, we are going to mix it in the water with continuous heating and continuous stirring until a saturated solution is formed. When the saturated solution is formed, we are going to transfer the heated mixture into the cool water, and in this way whenever the mixture cools down, it will form the crystals that are pure. ठीक है? This is the technique that how will you form the crystals of potassium nitrate. I think that is very clear to you. आपको सारा समझ आ गया है about the crystallization technique, and crystallization technique के through हम homogeneous mixtures को भी क्या कर सकते हैं, separate out कर सकते हैं. Now let me tell you about the next technique, and our next technique is chromatography. Students, precautions में सिर्फ आपने एक चीज लिखनी है, and that is only the mixture consisting of a crystalline solid can be separated using this technique, that is crystallization. Okay. Now हमारी next technique है also in the category of separation of the homogeneous mixture, and that is chromatography. Start करते हैं chromatography से. Okay students, so our next technique is chromatography. Chromatography is the technique used for separation, identification and purification of an organic and inorganic compound. It is a technique
used for identification, purification and separation of organic and inorganic compounds. स्टूडेंट्स देखो जो हमने किया था अबाउट जो हमने किया था अभी दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या था? इट वाज कि एक सब्सटेंस क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है व्हेन इट इज हीटेड एंड कूल्ड. जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट एंड कूल कर दिया जाए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है. दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Now we have to discuss about that what is the principle of chromatography. Chromatography में क्या होता है? That separation of the components you based on their solubility. Principle में क्या है? The separation of the constituent components takes place of the constituent components takes place based on the solubilities of the constituent substances in a solvent. What is the basic principle? यहाँ पे हमारे पास क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला था, क्रोमा वर्ड इज यूज्ड फॉर कलर. ठीक है, जहाँ पे भी क्रोमा वर्ड आ गया दैट इज यूज्ड फॉर कलर्स. ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट द टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑन द बेस्ड ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी. कि सपोज करो मेरे पास एक इंक है, बेसिकली इसको डाइज या इंक्स को सेपरेट करने के लिए वी कैन ऑल्सो सेपरेट द क्लोरोफिल पिगमेंट यूजिंग द क्रोमैटोग्राफी टेक्निक. तो मुझे आपको ये चीज़ बतानी है दैट जब हम सेपरेट कर रहे हैं क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट वी आर गोइंग टू हैव द सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी. जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर जाएगी, जो चीज़ कम सॉल्युबल है वो क्या रहेगी? नीचे रहेगी. जो सबसे सॉल्युबल है वो क्या रहेगी? और भी नीचे रहेगी. सो let us write up here first. Paper chromatography technique is used. Graphy technique is used to separate out the constituent components of the ink or dye. Constituent components of the ink which is consisting of many colors, dye or even chlorophyll. So students, this is the technique. ठीक है, अब हमें करना क्या है? दिस इज माई क्रोमैटोग्राफी पेपर. यहाँ क्रोमैटोग्राफी पेपर के 2 सेंटीमीटर ऊपर बीच में, दिस इज द 2 सेंटीमीटर लाइन, एंड इसके बीच में मैं क्या कर रही हूँ? अपना मिक्सचर रख रही हूँ.
Suppose करो we have the mixture of the black and the red ink. This is the mixture. This is the chromatography paper. You can find this paper in your laboratory. And this paper is very different from the other papers, filter paper, writing paper और etc. ठीक है. क्रोमेटोग्राफी पेपर बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, सॉल्वेंट को अब्जॉर्ब करता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बेसिस पे ये क्या कर देता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर देता है. सो हमने पहले क्या किया, हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर मिक्सचर का एक ड्रॉप लगा दिया, ड्रॉप. देन व्हाट डू वी डिड, वी अलाउड इट टू ड्राई. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, we allow this mixture to dry. We allow this mixture to dry. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, I am going to transfer it into a beaker consisting of the solvent. This chromatography paper must be dipped in the, this is my chromatography paper and this is the mixture. ये मिक्सचर को मिक्स नहीं करना है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी पेपर को मिक्स कर, क्रोमेटोग्राफी पेपर को रहने देना है यहाँ पे. मिक्सचर को सॉल्वेंट के अंदर टच नहीं करना है. अगर हमने पहले ही टच कर दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाएगा. बेसिकली अपने आप ये सॉल्वेंट है ऊपर जाएगा. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द क्रोमेटोग्राफी पेपर कि ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा. फिर जो यहाँ पे हमने मिक्सचर लगाया अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटीज, वो इंक्स या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. नाउ देखो, आफ्टर सम टाइम, this is the watch glass. यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख लो, what is the function of the watch glass? Function of watch glass. So this is the watch glass. After some time हम देखेंगे, this is the solvent. And after some time in the chromatography paper you can see that there is a separation of the inks. And here is my watch glass. This is the watch glass again, and this is the glass jar. This is the glass jar. यहाँ पे लिख दो after some times. We can write up here. This is the stationary phase, and this is the mobile phase. So, हमने जब देखा कि हम क्या कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक. क्रोमेटोग्राफी पेपर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं. सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स which have different solubilities in a solvent. हम देख रहे हैं, हमने पहले क्या किया, क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, उसके 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने ये मिक्सचर का डॉट लगा दिया, इंक ड्रॉप, बेसिकली मिक्सचर का ड्रॉप लगा दिया. देन वी अलाउड दिस मिक्सचर टू ड्राई. आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व दैट हमने आफ्टर सम टाइम इसके ड्राई होने के बाद ग्लास जार के अंदर एक सॉल्वेंट डाला एंड उसके बाद उसको वॉश ग्लास से ढक दिया. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि दीज constituent components of the mixture are separated. Okay students, that was all for today.
कल हम डिटेल में करने जा रहे हैं दैट व्हाट डिड हैपेंड इन दिस एक्सपेरिमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच.